Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present the 9th video on the provisions of Constitution of India. And in this video, I will describe the election provisions of the President of India. It is provided in Union Executive. मित्रों, भाग 5 का पहला अध्याय संघ की कार्यपालिका के बारे में है और उसमें ही सबसे पहले राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। Because India is a republic country, it means the head of country shall be an elected person. So the President of India, being head of executive of country, being head of the country, being the first citizen of country, must be elected. By what procedure, by what manner, by whom? The electoral college by whom the president is elected has been provided in Article 54. And the manner through which they have to elect the office of president, the President of India, it has been provided in Article 55. It means to understand the election provision of President of India, you have to understand, one have to understand the provisions provided in Article 54 and Article 55. किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 पढ़ना होगा. Generally people say that it is very complex law. It is very complex, very complicated provisions. But I think this is not complicated. This is very easy. If you think on the basis of concept of for what it has been adopted, then it would be very easy to be understand for you. मित्रों, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के भाग 5 के पहले अध्याय में किए गए हैं, जो संघ की कार्यपालिका नाम से है। और इसका अनुच्छेद 54 यह बताता है कि मतदान कौन लोग करेंगे, कौन लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे, निर्वाचक मंडल में कौन कौन आएंगे और वो किस प्रकार से वोट देंगे, उनके वोट की वैल्यू क्या होगी, रीत क्या होगी। इसके बारे में यह कहना कि बहुत जटिल प्रावधान है, जैसा कि अमूमन कहा जाता है, वह मैं उससे सहमत नहीं हूं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के पीछे का संकल्पनात्मक कारण समझते नहीं है। Without understanding the conceptual reason behind the election modern manner of the president, they try to understand the provisions, and then it appear to very tough. इसी वजह से उन्हें बहुत कठिन लगता है। अब चलिए हम आपको इजी करते हैं। Actually, first of all, you have to be acquainted with the electoral college of president. इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल से पहले परिचित हो जाएंगे तो आप जानेंगे all the elected members, only elected members of लोकसभा, राज्यसभा। इसका मतलब संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, you know that there are 2 houses in the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and both the houses there are elected members as well as nominated members too. दोनों ही सदनों में निर्वाचित सदस्य भी हैं और नाम निर्दिष्ट सदस्य भी हैं। ध्यान दीजिएगा, right now Sachin Tendulkar is a member of Rajya Sabha, but he is not an elected member of Rajya Sabha. So he is not a member of Electoral College of President of India, though he is member of Rajya Sabha. Rekha, she is member of Rajya Sabha, but not an elected member. She is a nominated member, and because she is not an elected member, so she has no participation in presidential election. इसका अर्थ है कि उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का हिस्सा नहीं है, अधिकार नहीं। क्यों नहीं है?
क्योंकि हाउसेस में या तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं। जब जो नॉमिनेटेड है उनको नॉमिनेशन कौन करता है? जो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। द मेंबर्स हु आर sitting in the house as nominated members, they are nominated by the President of India itself. So it would be not logical, it would be illogical, irrational to allow the nominated member to participate in voting of President of India, who himself has appointed them. जिन्होंने खुद ही उन्हें नाम निर्दिष्ट किया वही राष्ट्रपति के फेवर में आकर वोट करे, ये ठीक नहीं है। So why only elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha are allowed? Likewise, there are two kinds of members in Vidhan Sabhas of states also. Under Article 331, 333, a person belongs to Anglo-Indian community might be nominated by the governor of the state. And the governor holds his office as a representative of state. So, even a nominated member in Vidhan Sabha has no right to participate in voting of president, because he himself is nominated by the agent of president as governor. विधान सभा में भी एक नाम निर्दिष्ट होता है। राज्यसभा में कितने होते हैं? 12। How many nominated members in Rajya Sabha? There are 12. How many nominated members in Lok Sabha? These are 2. How many nominated members might be in Vidhan Sabha? It might be 1. It is not mandatory. तो जो nominated members हैं, except the nominated members of the 3 assemblies, 3 houses, Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabha. All the elected members have right to participate in voting of office of president. राष्ट्रपति के चुनाव में ये सब लोग हिस्सा लेने के लिए अधिकृत है आर्टिकल 54। Okay, before going into concept, behind the concept, to understand the concept of making them eligible in electoral college of President of India, another thing we have to understand, that is the term state. Vidhan Sabha, all states. How many states in India right now? One may answer that there are 28 states, but no. For purposes of electoral college of President of India, there are 30 states right now. अभी तेलंगाना बना नहीं ऑफिशियली, जब बन जाएगा तो हम 31 कर देंगे। Why? You know that how many Vidhan Sabhas in India? On the basis of number of Vidhan Sabha, how many states? You know that in all the 28 states there are Vidhan Sabhas. So 28 states, and 2 of the union territories also have their Vidhan Sabhas. NCR Delhi, National Capital Region Delhi, and Puducherry, Pondicherry. In the 7 of 2 territories, these 2 territories there are Vidhan Sabhas, and the members of Vidhan Sabhas of NCR Delhi and Puducherry are also included into the meaning of state under the explanation attached with Article 54. अनुच्छेद 54 के साथ जो स्पष्टीकरण जोड़ा गया है उसमें जो राज्य शब्द की परिभाषा है एक्सप्लेन किया गया है, उसमें राज्य में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी को भी माना गया है। So for the purposes of electoral college of president, election of president, presidential election, there are how many states in India? So you have to include the union territories having their own Vidhan Sabhas in the group of states. इस उद्देश्य के लिए आपको संघ शासित क्षेत्रों में से भी उन क्षेत्रों को जिनकी अपनी विधान सभाएं हैं आपको राज्यों की सूची में शामिल करना होगा। So why there are 30 विधान सभा in India? It means there are 30 states, 30 राज्य। अब एक बात यहां आपको समझनी है। It means
The presidential election is an indirect election. Okay? It is not direct election. There are two kinds of elections. Okay? The first is direct election and the second is indirect election. Direct election means an election in which the people living in India, the citizens of India, just being citizen of India, are entitled to participate in voting. जब कभी आम जनता जो भारत की नागरिक होने के नाते केवल वोट करती है, ठीक है, वयस्क मेजॉरिटी होनी चाहिए, साउंडनेस होना चाहिए, दैट इज अनदर थिंग, तो उसे हम आम चुनाव कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन. एंड व्हेन एन अथॉरिटी इज इलेक्टेड बाय when an authority, an office, a post is not elected by the citizens in general, but by representatives elected by the citizens. Who elects the members of Lok Sabha? The people of India. Who elects the members of Vidhan Sabha? The people living in the state. Who elects the members of Rajya Sabha? The members of Vidhan Sabha of state. तो ये जो है हमारे प्रतिनिधि हैं, ये दोनों प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अप्रत्यक्ष. These two, the members of Lok Sabha and Vidhan Sabha, represent us directly because they are being elected by us directly, and the members of Rajya Sabha are elected by indirectly, and they participate to elect the President of India. So the election of President of India is in an indirect election because the President of India is not elected by people directly. तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है. अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि the citizens participate in voting but not by their own choice, but not by, according to their own thinking, but through their representatives. जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें जनता खुद नहीं वोट करती, वो अपना वोट, उनके उस वोट कौन देता है? उनके रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं. सो द क्वेश्चन इज हियर, हाउ मेनी टाइम्स a person living in India as a citizen is represented in an election of president. राष्ट्रपति के चुनाव में कोई एक व्यक्ति कितनी बार रिप्रेजेंट हो रहा है? जरा सपोज करिएगा, सपोज वी आर लिविंग इन लखनऊ, a person lives in Lucknow, okay? A person lives in Lucknow. Okay? Carefully understand the illustration. He casted their vote, his vote in Lok Sabha. यहां भी इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसने इनको वोट देके चुना है. ओके? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उसने वोट दिया. यहां इसने एक विधायक चुना है, और यूपी को, पूरे यूपी को पूरे यूपी को राज्यसभा मेंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो ही इज रिप्रेजेंटेड बाय अ राज्यसभा मेंबर टू. इनको तो लोकसभा को उसने वोट दिया, विधानसभा को उसने दिया, विधानसभा ने राज्यसभा के मेंबर को वोट दिया. ही इज रिप्रेजेंटेड in the election of President of India by his representative in Lok Sabha प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये. ओके? तो he is being represented by his member of Lok Sabha, by his member in Vidhan Sabha, through the member of Rajya Sabha who represent his state.
आप जानते हैं कि राज्यसभा से कोई लखनऊ से या वाराणसी से नहीं होगा। राज्यसभा में कोई एरिया नहीं डिसाइड है। देयर आर 31 मेंबर्स इन राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द होल यूपी। कुल 31 सदस्य हैं राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग किसको रिप्रेजेंट करते होंगे? उत्तर प्रदेश के जो राज्यसभा में है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को, वहां की जरूरतों को। सो अ पर्सन लिविंग इन लखनऊ लिव्स इन लखनऊ बीइंग 3 टाइम रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति के चुनाव में वो 3 बार रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लखनऊ के एमपी लालजी टंडन साहब के जरिए, जहां हो रहा है विधानसभा में सपोज करिए कलराज मिश्रा के इलाके में उनके जरिए, और यहां से जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य होंगे, सांसद होंगे, उनके भी जरिए। तो 3 बार उसका राष्ट्रपति के चुनाव में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ओके, ही इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 टाइम्स। ओके, बट a person who lives in Andaman Nicobar, जरा देखिए मैं थोड़ा सा एक लाइट दिखा रहा हूं कि अनइक्वालिटी है यहां पे। A person who lives in Andaman Nicobar द्वीप समूह, being represented in presidential election just by single representative that is member of Lok Sabha। इसके पास भी अपना एक लोकसभा का मेंबर है, उसी से रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, बिकॉज देयर इज नो विधानसभा इन अंडमान निकोबार एंड देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा from the Andaman Nicobar Dweep Samuh Island. A person lives in Andaman Nicobar just being represented in presidential election through member of Lok Sabha। तो जो अंडमान निकोबार में रह रहे हैं उनका एक ही बार रिप्रेजेंटेशन होता है। You have to mind it. It might be challenged on the ground of inequality of citizens living in India। ठीक है, हाँ ये अलग बात है सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई रैशनल क्लासिफिकेशन निकाल ले, कोई तार्किक वर्गीकरण का नियम निकाले, लेकिन अंडमान निकोबार में रहने वाला व्यक्ति, लक्षद्वीप में रहने वाला व्यक्ति, दमन एंड दीव में रहने वाला व्यक्ति, दादर नागर हवेली में रहने वाला व्यक्ति, चंडीगढ़ में रहने वाले लोग, इन लोगों को केवल एक ही बार रिप्रेजेंटेशन है। बिकॉज दीज 5 यूनियन टेरिटरीज have no Vidhan Sabhas and neither nor being represented in Rajya Sabha। राज्य सभा में चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कोई प्रतिनिधि नहीं है। राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। जब है ही नहीं तो प्रेसिडेंट कोर्ट में भाग नहीं लेता, तो उन लोगों का राज्यसभा के थ्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। And these 5 union territories have no have their legislative assemblies। इनकी अपनी विधानसभाएं भी नहीं है। So they are not being represented by member of विधानसभा। तो लखनऊ में रहने वाला, मुंबई में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला पर्सन जो है वो 3 टाइम रिप्रेजेंटेटेड होता है। But the person living in the 5 union territories, यानी यहां यूनियन टेरिटरीज में भी अंतर है। A person who lives in Puducherry, Pondicherry is represented 3 times। 3 times वहां क्यों? वहां भी विधानसभा है, लोकसभा तो खैर पूरे भारत में है। भारत का कोई एक टुकड़ा नहीं है जहां से कोई लोकसभा में ना आता। Each and every person is represented in Lok Sabha, but not all the persons living in India are being represented by Rajya Sabha, in Rajya Sabha। Okay, because there are no representation of the 5 union territories in Rajya Sabha। तो राज्य सभा में उन लोगों का नहीं है, यानी उनका वोट केवल 1 बार आता है। हम लोगों का वोट 3 बार जाता है। और एक बात और भी देखिए, सपोज करिए कि वहां के एमपी की अगर डेथ हो चुकी है, लोकसभा का सदस्य मर गया है, डिसमिस कर दिया गया, डिस्क्वालिफाइड है,
तो केवल डिसमिसल या लैक ऑफ वैकेंसी इन अ सीट कि ग्राउंड पे इलेक्शन होल्ड नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, तो अगर इसकी डेथ हो गई है, आगे वोट नहीं दिया, तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। जबकि हम लोग यहाँ सपोज करिए कोई जो एमएलए साहब है, मैंने जिनका नाम लिया, मैं नहीं चाहूंगा उन पे आप उदाहरण दें, प्रहलाद मिश्रा या लालजी टंडन पे, सपोज करिए कि जहां आप रहते हैं वहां का विधायक की डेथ हो जाए या वो डिसमिसल हो जाए या वो रिजाइन कर दे, तो भी आप यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। सपोज करिए राज्यसभा मेंबर आपको वोट देने नहीं गया, तो भी आप वन टाइम रिप्रेजेंट हो जा रहे हैं। बट द पीपुल्स लिविंग इन द 5 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय देयर लोकसभा मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, उनका सिंगल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस बात को पहले समझिएगा। ओके, इसमें समझना क्या है, एक खामी है, मैंने दिखाया। आप इसको कोई फॉल्ट भी मान सकते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं कि इतना बड़ा देश है, कुछ लोगों का थोड़ा कम ही रिप्रेजेंटेशन हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो गई। ओके, लेकिन ये है, दिस इज अ फैक्ट। ओके, द अदर थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 54, हम अभी 55 पे चर्चा ही नहीं कर रहे, 54 पे चर्चा कर रहे हैं। That is all Vidhan Sabhas are included in Electoral College of India. All Vidhan Sabhas, 30 Vidhan Sabhas. But the proportion of representation are not equal in the all Vidhan Sabhas. सभी विधान सभाओं में इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे you have to compare the representation in Uttarakhand Legislative Assembly with representation in Uttar Pradesh Legislative Assembly. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधान सभाओं में जो प्रतिनिधित्व का पैमाना, उस पर तुलना करिएगा। यूनाइटेड यूपी में हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली थे मेंबर्स? There were 425 members. It has been divided into UP and right now UP. इसमें कितना रखे गए? 403. In Uttarakhand 22 members. Okay, but right now this number have been extended to 70. It means more than 3 times the representation in Vidhan Sabha in the proportionate of representation in UP Vidhan Sabha have been increased in Uttarakhand. भाई 22 को 70 बना दिया गया। अगर हम 22 गुणे 3 करेंगे तो भी 66 ही आएगा, प्लस 4 और जुड़ा गया, यानी इसका मतलब है मोर देन 3 टाइम्स उनको उनका रिप्रेजेंटेशन, जिस इलाके में जितनी पॉपुलेशन को 22 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, द पॉपुलेशन व्हिच वर बीइंग रिप्रेजेंटेड जस्ट बाय 22 रिप्रेजेंटेटिव्स, 22 एमएलएस, right now they are being represented by 70 members. So the democracy has been liquidated there. जो वहां 22 विधायक ही उनकी वॉइस रेज करते थे, right now they have 70 persons to raise their voice. But in the rest part of UP, the representation are as it is. ठीक है, आज भी उतने ही एमएलए हैं जितना यहां 22 थे। अगर इनको भी 3 टाइम बढ़ा दिया जाए, then it might be 1200 plus. It means in ratio of 70 members of Uttarakhand Vidhan Sabha, there should be 1200 plus members in UP Vidhan Sabha. But no, these are just 403. So there are not equal representation. कैसे? Suppose just
हाउ मेनी पर्सन्स पीपुल लिविंग इन उत्तराखंड? नियर बाय 1.5 करोड़ और 2 करोड़। सपोज करें कि यहां 2 करोड़ लोग रहते हैं, मान लेते चलिए 20 मिलियन लोग हैं, हम 2 करोड़ ही लिखें। एंड इन यूपी देयर आर नियर बाय 20 करोड़। अगर इसके बुनियाद पे भी देखें, if 2 crore peoples are being represented by 70 members, then 20 crore peoples must be represented on the same ratio by 700 members. मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में 2 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ से कम है, लेकिन हमने एक रेशियो निकालने की, एक मोटी मोटी बात, इसको आप याद मत करिएगा कि वहां की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, नहीं, मोटी मोटी बात एक कि अगर 2 करोड़ लोगों को 70 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then how much members are required to represent 20 crore peoples? Obviously there are 700, but actually they are being represented by just by 400 plus members. Okay, so it means there are apportionment between the members, between the number of members by whom the people of different states are being represented. अर्थात अलग अलग राज्यों में जो विधायकों की संख्या है वो वहां की जनसंख्या के अनुपात में इक्वल नहीं है। इट इज नॉट सिमिलर अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेशन इन द प्रोपोर्शनेशन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द स्टेट। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कि उत्तराखंड के लोगों के एक एमएलए का 1 वोट माना जाए, तो फिर वहां के लोग कितने वोट दे देंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, राष्ट्रपति के चुनाव में? They shall have 70 votes through their number of MLAs। ठीक है, अपने विधायकों की संख्या के आधार पर अगर सबको 1 वोट देने की बात कही जाए तो इनके कितने विधायक वोट देंगे? 70। तो इनके कितने वोट होंगे? 70। कितने लोगों के 70 वोट होंगे? जस्ट 2 करोड़ के। जबकि यहां 20 करोड़ लोग केवल 400 प्लस वोट करेंगे, जबकि इनका कितना होना चाहिए? रेशियो ऑफ दैट शुड बी 700। जबकि ये मैं पॉपुलेशन गलत बता रहा हूं, यहां 1 पॉइंट सम करोड़ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो यहां करीब 1200 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देयर शुड बी प्रोपोर्शनेशन बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, सो अ फार्मूला हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 55 टू मेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इक्वल। ठीक है, on the basis of population living in the state, not on the basis of number of MLAs of the state। राज्य के विधायकों की संख्या के आधार पर वोट नहीं होगा, प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, प्रोपोर्शनेशन होगा on the basis of population living in the state। उस राज्य में कितने मतदाता हैं, कितनी जनसंख्या कुल है, नॉट वोटर्स, पॉपुलेशन। तो जितनी जनसंख्या जहां रह रही है उसके रेशियो में जितने भी नंबर ऑफ एमएलए हैं वो एक रेशियो में, एक सिमिलर रेशियो में वोट करेंगे ऑफ ऑल 30 स्टेट्स। सभी 30 राज्यों के विधायक अपनी जनसंख्या के रेशियो में वोट करेंगे एंड द रेशियो शैल बी इक्वल। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन शैल बी इक्वलाइज्ड on the basis of ratio of population। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर इक्वल किया जाएगा। ओके, तो एक तो इक्वलाइजेशन। अब आप देखिए इक्वलाइजेशन बिटवीन द स्टेट्स, 2 तरह के इक्वलाइजेशन की यहां बात की गई है। इक्वलाइजेशन among states। between states and union। एक और भी इक्वलाइजेशन है, because we have adopted federal structure of government। तो एक तो सभी राज्यों में among states
सभी राज्यों में केरला, यूपी, एमपी, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, जो भी स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आज तेलंगाना बन जाएगा तो वो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सब में, उत्तराखंड, यूपी, इन सब में इक्वलाइजेशन की बात की गई। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सब में इक्वलाइजेशन की बात की गई। तो ये तो सब में किया जाएगा। फिर इसके बाद ऑल स्टेट्स की जितनी वोटिंग होगी, ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एंड देयर आर फेडरल सिस्टम हैव बीन अडॉप्टेड। फेडरल का मतलब क्या है, हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किए हैं। फेडरल में क्या है, यूनियन है और फिर यूनियन स्टेट्स में बांटा गया है। तो यहां किया क्या गया राष्ट्रपति के चुनाव में, ऑल स्टेट्स टोटल मिला के जितना वोट करेंगे उतना ही यूनियन भी वोट करेगा। यूनियन की ओर से कौन वोट करते हैं, द पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द यूनियन, रिप्रेजेंट यूनियन, ये संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड विधानसभा रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ विधानसभा जितनी होगी वही तो सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और जितना सारा स्टेट मिलकर वोट करेगा उतना ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मिलकर करेंगे। तो दो तरह से इक्वलाइजेशन है, एक तो हर एक स्टेट को इक्वल किया गया, और फिर जितना कुल स्टेट्स मिलकर वोट करेंगे उतना ही यूनियन भी करेगा बाय ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। तो दो तरह की इक्वलाइजेशन की बात की गई है। पहले एमंग स्टेट्स कैसे किया गया, किसी एक स्टेट की वोट पावर कितनी है, वोट पावर ऑफ एनी स्टेट, टोटल वोट वैल्यू ऑफ, टोटल वोट वैल्यू। और आप मेरा फार्मूला अगर याद रखेंगे इस तरह से निकालेंगे बहुत आसान हो जाएगा। टोटल वोट वैल्यू ऑफ एनी स्टेट, एनी स्टेट का मतलब एनी स्टेट विधानसभा। इसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है जिसको आप अगर पढ़ेंगे आर्टिकल 55 में, then it might be appear you to be a complicated one। अगर आप इसको अनुच्छेद 54 से पढ़ेंगे तो आपको टफ लगेगा, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूं डेफिनेटली इट वुड बी फील यू टू वेरी इजी, आपको बहुत आसान लगेगा। टोटल वोट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, टोटल वोट, नॉट वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, ऑफ सिंगल एमएलए, नो। अरे सिंगल एमएलए करने के लिए क्या करिएगा, टोटल जो आएगा उसमें जितने एमएलए होंगे वहां उससे भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। सो व्हाट इज द टोटल वोट वैल्यू ऑफ एनी स्टेट्स विधानसभा, ऑफ अ स्टेट, किसी एक राज्य के विधानसभा का कुल मत मूल्य कितना होगा, बहुत इजी है, इक्वल टू नंबर ऑफ population of the state divided by 1000। बस population of the state divided by 1000, just population of the state divided by 1000। why it is divided by 1000? to minimize the digit। जानते हैं कि भारत में प्रदेशों की जनसंख्या करोड़ों में है, तो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि किसी एक स्टेट का टोटल वोट वैल्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितना, जितनी जनसंख्या है, अब जनसंख्या करोड़ों में है, देन टू मिनिमाइज इट, अब सपोज करिए कहें कि जनसंख्या 2 करोड़ है, करोड़, तो 2 करोड़ टोटल वोट वैल्यू बहुत बड़ा हो रहा है, कुछ ज्यादा हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देने का मतलब 3 डिजिट पे आप पॉइंट लगा दीजिए, बस यही तो है।
तो किसी भी स्टेट की टोटल वोट वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, जाननी है, वहां की पॉपुलेशन लिखिए और लेफ्ट से 3 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, बस। अब सपोज करिए कि उत्तराखंड की जनसंख्या मान लेते हैं 1,35,70,986 है, सपोज कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 1,35,69,986 मान लेते, सपोज करिए, जस्ट थिंक। हमने 135 क्यों लिखा है? देयर इज अ गेम, क्योंकि 70 मेंबर्स है ना वहां पे, तो उसकी वजह से मैंने लिखा है। ये रियल नहीं है, ये मैं एक प्रिज्यूम करके बोल रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं, फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे में अगर आप जितनी पॉपुलेशन है वहां का टोटल वोट वैल्यू उतना ही मान लेंगे, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि फिर एक मेंबर की वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपके लिए निकालना बहुत टफ हो जाएगा। वो कैसे? एक तो यहां आप निकालेंगे, ओफ नो, इसको हम कर रहे हैं ऐसे, 1,40,40 लाख, ठीक है, 1,40,40 लाख। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, देन आफ्टर आएगा 0, देन आफ्टर इसको आप मान लीजिए 1, और फिर आएगा 1, 2, 3। तो एक मेंबर की वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक मेंबर की, 70 टोटल है ना, तो एक मेंबर की कितनी हो जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,01,000 वोट एक एमएलए का होगा। अब जरा इमेजिन करिए कि देयर आर नियर बाई 2,000 एमएलएस इन इंडिया, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बता दे रहा हूं। There are 4,089 MLAs in India. Then it would be very tough to make a fraction of all total value of all the members. भाई 2,01,000, कहीं 3, 4 लाख, 2,00,000 है, कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? ये कैलकुलेशन वोट वैल्यू अरबों में चली जाएगी, तो बहुत टफ हो जाएगा। तो क्या किया गया? यू हैव टू मेक इट इजी। 3 पॉइंट पे दशमलव लगा दिया गया, क्योंकि 1,000 से भाग यहां दी गई थी। तो अगर पहले ही भाग दे लेते 1,000 से, तो क्या होता, यहां पे एक पॉइंट लग जाता। अब एक बात और भी है, जरा देखिए, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1,40,69,986। टू मिनिमाइज द नंबर्स, जस्ट टू मिनिमाइज, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1,000। 1,000 से भाग दे दीजिए। 1,000 से भाग देने का मतलब क्या है? 3 पॉइंट पे पॉइंट लगा दीजिए, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट के उधर अगर 500 या उससे प्लस है, यहां अगर 500 या 500 प्लस है, तो इसको 1 मानिए और 1 यहां जोड़ दीजिए। क्योंकि यहां इस सिचुएशन में 986 है, तो यहां क्या मान लेंगे? ये हो गया दशमलव, पॉइंट, पॉइंट के बाद ये हो गया 0, और इसको मान लिया 170। अब देखिए क्या हो रहा है, टोटल वोट वैल्यू ऑफ विधानसभा उत्तराखंड ऑन द बेस ऑफ दैट पॉपुलेशन इज 40,070, 40,070, 14,070। देन व्हाट इज द वोट वैल्यू ऑफ सिंगल मेंबर? देयर आर 70 MLAs, so 201, ओके, 201। तो आपको इस तरह से देखना होगा। अब आप 201 मत पहले निकालिए ना, आपको सबसे पहले क्या करना होगा? स्टेट का पूरा निकालना है। तो द टोटल वोट वैल्यू ऑफ स्टेट विधानसभा इज इक्वल टू पॉपुलेशन, जैसे इस केस में हमने लिखा 1,40,40,00,000, सपोज कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 1,000, ठीक है, 14,000 हो जाएगा। टोटल वोट वैल्यू इज 1,40,40,00,000, तो टोटल वोट वैल्यू इज 14,000। उत्तराखंड राज्य का कुल मत मूल्य 14,000। इसी तरह से आप यूपी का निकाल लेंगे, 30 स्टेट्स का निकाल लेंगे, ठीक है, अलग अलग 30 स्टेट्स का निकाल देंगे, और 30 स्टेट्स का जितना वोट वैल्यू होगा उतना ही
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का मिला के होगा। द टोटल वोट वैल्यू ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा इज इक्वल टू द टोटल वोट वैल्यू ऑफ 30 स्टेट्स विधानसभा। हर एक विधानसभा की टोटल वोट वैल्यू कैसे, वहां की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब यहां पॉपुलेशन कब की पॉपुलेशन, यू हैव टू केयर इट। अब यहां जनसंख्या कब की, तो आप जानते हैं कि हमारे यहां लेटेस्ट जनगणना हर 10 साल पे होती है। राइट नाउ इन 2014 which is the latest census we have, data of the latest census that is held in 2011। जो 2011 की जनगणना उसके सबसे लास्ट के आंकड़े हैं। बट वन थिंग यू हैव टू केयर हियर, द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, 1971 की जनगणना के आधार पर, दैट इज नोटेबल पॉइंट। आर्टिकल 54(5) explanation. Though in its explanation it is provided that in this article the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published. Okay? स्पष्टीकरण के पहले खंड में तो लिखा गया है कि जनसंख्या से तात्पर्य उन अंतिम जनगणना से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। जैसे मान लीजिए 2012 में आपके यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, तो 2001 की जनगणना पे हुआ होता, क्योंकि 2011 की जनगणना तो हो गई थी, बट रिलेवेंट फिगर्स उसके पब्लिश नहीं थे अभी। लेकिन नहीं, यहां तो 2001 की 11 की बातें छोड़िए, यहां जो नीचे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड, यानी प्रोविजो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इन दिस एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ व्हिच द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड साइड until the relevant figures for the first census taken after the year of 2016-26 have been published be construed as a reference to the 1971 census। सन 2026 तक 1971 की जनगणना को लिया जाएगा। और मैं बता दूं, ये 2026 के आगे फिर बढ़ाया जाएगा। 2001 में 25 इयर्स के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन ये बार बार बढ़ाया गया। अब क्वेश्चन है कि दो वी हैव द लेटेस्ट फिगर ऑफ द फिगर ऑफ लेटेस्ट सेंसस, then why we are based on the 1971 population census? हम लोगों के पास जब नई जनगणनाओं के आंकड़े हैं तो 1971 की जनगणना पर क्यों निर्भर कर रहे हैं? The answer would be the family planning not equally adopted in India। ठीक है, basically in North India it was rejected, while in northeast and southern India it was welcomed। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन भारत में कब आया? In 1974-75 when India adopted family planning to control the population after 1971 census। 1971 की जनगणना के बाद भारत ने परिवार नियोजन को स्वीकार किया। उत्तर भारत में बहुत विरोध हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग तो प्रोडक्शन हाउस है, तभी तो पूरे दुनिया में यहाँ से मजदूर फैले हुए। खैर, धर्म से जोड़ा जाता है कि कैसे बच्चे को पैदा होना रोकेंगे आप, हिंदू मुसलमान दोनों में। अब तो खैर हिंदू लोग समझ गए, लेकिन दूसरे के लिए क्या छोड़ा है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों ने इसे भगवान के कार्य में इंटरफियर माना, उसका विरोध किया। बल्कि आप देखेंगे कि 71 to 81 में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। इसका मतलब क्या था, इसका कारण क्या था? फैमिली प्लानिंग का अपोज जो किया गया, तो फैमिली प्लानिंग का अपोज हुआ, जबकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ में वहां के लोगों ने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर लिया। तो फैमिली प्लानिंग जहां अडॉप्ट की गई वहां की पॉपुलेशन कम, और जहां इसका विरोध किया गया पॉपुलेशन बढ़ गई, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा। और पॉपुलेशन बढ़ जाने से ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा था। तो एक तरह से जिन्होंने कंट्री के अगेंस्ट काम किया, द एरिया, द टेरिटरी, द पार्ट ऑफ इंडिया, द पीपुल लिविंग देयर एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ नेशन।
दे वुड गॉट बेनिफिट, उन्हें तो लाभ मिल जाएगा इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जबकि जिन लोगों ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर लिया उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। सो ये मान लिया गया कि ठीक है आप पैदा करिए अपने यहां, बट रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं बढ़ने दिया जाएगा। कहां पे? अपनी लोकल असेंबली बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, लेकिन जो वहां पे नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में हो या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वहां पे तो आपको मैं बता दूं कि लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो भी 1971 के सेंसस पर है। आज के पॉपुलेशन पे अगर बंटवारा कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में 80 की जगह कम से कम 250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए इन कंपैरिजन टू द मेंबर्स ऑफ केरला। केरल में 21 सांसद है केरल से, और यूपी से 80। केरल की पॉपुलेशन कितनी है पता कर लीजिएगा, आपकी कितनी है? 10 टाइम से कम नहीं होगी। तो अगर 10 टाइम पॉपुलेशन आपकी है तो आप यहां से इक्वल प्रोपोर्शन में भेजे जाए तो 200। लेकिन क्यों? जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था, जब लिखा गया था, उसमें इक्वल थे। यूपी के लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ाई अपनी, दे अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग, तो दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑफ नेशन बाय डिक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घटाकर उन लोगों ने देश के हित में योगदान किया, जबकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जनसंख्या बढ़ा करके देश के लिए नुकसान पैदा किया। ठीक है, तो एक तो कंट्री को नुकसान कर दिया और दूसरा पॉलिटिकल माइलेज भी इनको मिल जाएगा कंट्री को रूल करने में, तो फिर तो जनसंख्या बढ़ाने की होड़ लगेगी। कास्ट की यही प्रोविजन कास्टिज्म और रिलीजनिज्म के कंट्रोल में भी ला दिया जाता, लेकिन संभव नहीं इस देश में। आपको यह मानना होगा कि जब से जातीय झगड़े शुरू हुए हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, तब से तमाम लोग जो अपने गांव में किसी जाति विशेष के होने के नाते पीड़ित हैं, सर्वाइवर हैं, वो जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान दिए। मैं ऐसा तमाम बड़े ब्राह्मण परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपने किसी गांव में जातीय कमजोरी की वजह से अपना परिवार बढ़ाया, खूब जनसंख्या पैदा की। ऐसे निचले जातियों के भी लोग यह काम किए। हर जाति में कार्य हुआ, और धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनका प्रभाव जो कमजोर लोग हैं जनसंख्या वृद्धि के तौर पे लेते हैं। इस नाते देश के लिए अगर आप भला चाहते हैं तो दंगा जैसी मानसिकता से एकदम दूर रहिए। यह कंट्री को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। ओके, खैर, जातीय झगड़ों से देश को सुरक्षित रखा जाए तो इस सो व्हाई द बेसिक पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस हेल्ड इन 1971। 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या देखी जाएगी। ठीक है, 1971 के ग्राउंड में। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि वी आर 10 टाइमिंग द पीपुल्स लिविंग इन यूपी आर नियर बाई 10 टाइम्स ऑफ द पीपुल्स लिविंग इन केरला। ठीक है, बट वी हैव रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा जस्ट 4 टाइम्स इन कंपेरिजन टू केरला। वहां पे 20 लोकसभा सांसद है, एमपी 20 है, केरला में 20 है, और यूपी में 80 है। जबकि वहां की पॉपुलेशन, मैं एक अंदाजा से बता रहा हूं, आई गेस जस्ट, आई डोंट नो द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ केरला राइट नाउ, इट इज नियर बाय 2 करोड़, 2 करोड़ के आसपास है, बट ऑफ यूपी इट इज 20 करोड़ नियर बाय। सो द पॉपुलेशन लिविंग इन यूपी इज 10 टाइम्स ऑफ केरला। On the basis of representation of peoples living in Kerala in parliament, there should be 200 members from UP in parliament, in Lok Sabha. Once it was similar, equal on the basis of proportion living on the basis of number of population. शुरू में कभी इक्वल था, लेकिन उन लोगों ने अपनी जनसंख्या कम करी, यानी कम बढ़ाया, और यहां के लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ाया। तो कभी आप इक्वल थे से आज आप 10 टाइम नहीं है, 4 टाइम होना तो नेचुरल था, और देन इसके बाद जो 6 टाइम है आप, वो ज्यादा हुई है।
क्योंकि जो 20 के रेशियो में 80 था तो नॉर्मल था, तो 4 टाइम तो होना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा स्टेट है। लेकिन अब 4 टाइम से आप 10 टाइम हो गए, तो 6 टाइम मल्टीप्लाई कर गए, ये आपने जो संख्या बढ़ाई यूपी की लोग खाए। तो पॉपुलेशन ऑफ आंध्र ऑफ सेंसस ऑफ 1971 के पीछे का लॉजिक ये है। अब हम फिर चलते हैं आर्टिकल 55 पे ही। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये जो मैंने बताया ये सब आर्टिकल 55 में है। ओके, द सेकेंड काइंड ऑफ इक्वलाइजेशन, दिस इज बिटवीन द टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड वोट वैल्यू ऑफ यूनियन। यूनियन मींस पार्लियामेंट। हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वो सिंबल होता है। ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली द यूनियन ओनली, बट ही रिप्रेजेंट्स फेडरलिज्म आल्सो। वो संघ के ढांचे को भी रिप्रेजेंट करता है। ही अपॉइंट्स गवर्नर एज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट एज एन एजेंट ऑफ, अपने एक अभिकर्ता के तौर पे वो किसको अपॉइंट करता है? गवर्नर। तो थ्रू गवर्नर्स he rule over the states also. So why he must be elected by not only by union but equally by states. तो इक्वल होता है, स्टेट्स का जितना है उतना ही यूनियन का। ठीक है, स्टेट्स में केवल विधानसभा भले भाग लेती है, लेकिन जितना कुल विधानसभाओं का मत मूल्य होगा उतना ही लोकसभा राज्यसभा मिला कर देंगे। तो what shall be value of मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को निकालने के लिए क्या होगा? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल 30 विधानसभा इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द मेंबर्स पार्लियामेंट, नॉट ओनली ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ऑल द मेंबर्स मींस ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, अंडरस्टूड है। तो 30 विधानसभाओं का आज के समय में जितना कुल वोट वैल्यू होगा उतनी ही वोट वैल्यू विधान लोकसभा को सॉरी संसद की होगी। हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स इन पार्लियामेंट? दीज आर 543 in Lok Sabha plus 233 in राज्य सभा। 233 आज राज्यसभा में है, 12 नॉमिनेटेड है, तो 245 है राज्यसभा में। 543 इलेक्टेड है लोकसभा में, 2 नॉमिनेटेड है, तो 545 लोकसभा में। 545 टोटल है, 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं नॉमिनेटेड, 245 राज्यसभा में टोटल है। तो टोटल कितने हो गए? 6, 7, 7। कुल विधानसभाओं का कुल मत मूल्य जितना होगा, मैंने कहा हर एक स्टेट की 1971 की पॉपुलेशन लिखिए और उस पे 3 अंक पे दशमलव लगाते जाइए। 300 को आपने लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करना सही और उसको जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए। जितना आएगा वो सभी विधानसभाओं कुल मत मूल्य उतना ही टोटल वैल्यू पार्लियामेंट की। अब पार्लियामेंट की जितनी कुल आ गई उसमें 776 से डिवाइड कर दीजिए उसको, तो सिंगल एमपी का वोट वैल्यू निकल के आ जाएगा। और किसी एमएलए का तो वहां की विधानसभा के वोट वैल्यू के बाद वहां के नंबर ऑफ एमएलए से भाग दीजिए, तो वहां के एक एमएलए की वोट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप दोनों की वोट वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपने क्या देखा कि न केवल स्टेट्स के बीच में इक्वलाइजेशन किया गया, बल्कि फेडरल सिस्टम की वजह से जितना कुल स्टेट्स मिला के रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही पार्लियामेंट यानी यूनियन भी रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेट्स रिप्रेजेंट करेंगे बाय इट्स ओन सिंगल हाउस विधानसभा, ये अपने एक ही हाउस से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि यूनियन अपने दोनों सदनों को मिला के रिप्रेजेंट करेगी। बट दोनों सदनों को मिला के रिप्रेजेंट करने पर भी इसका 2 टाइम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। कुल राज्य मिला के जितना प्रतिनिधित्व करेंगे उतना ही संसद कुल मिला के करेगी। ये नहीं कि दोनों सदन मिलकर 2 गुना कर देंगे, नहीं, उतने में ही दोनों मेंबर्स मिलकर वोट देंगे। तो राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज का की वोट वैल्यू इक्वल होती है।
क्योंकि दोनों मिला के उतना ही वोट देंगे, इतना है तो एक का कितना है तो उससे दोनों से भाग, दोनों नंबर से भाग दिए थे एक साथ। ओके, द सेकेंड थिंग इज मैनर। मैनर में एक तो इक्वलाइजेशन आपने देख लिया, अब दूसरा है वोट का मैनर क्या होगा। तो ये लिखा हुआ है क्लास आर्टिकल 55 क्लास 3 में, ठीक है। पहले क्लास 1 को फिर से देखिए। As far as practicable, there shall be uniformity in the states of representation of the different states at the election of the president. जहां तक संभव होगा सभी राज्यों में प्रतिनिधित्व में एक रूपता होगी, एक समानता होगी। कैसे किया गया अभी आपको बताया था कि पॉपुलेशन में 1000 से भाग देते जाइए, हर स्टेट का निकल जाएगा। यानी हर स्टेट को कितना रिप्रेजेंटेशन है, जितना वहां की पॉपुलेशन है, जितना पॉपुलेशन उतना ही। बट करना क्या है, नंबर पॉपुलेशन का कम करने के लिए उसमें 3 डिजिट पे पॉइंट लगा दिया जाता है, यानी 1000 से भाग देने का पर्पज है ये बस। देन आफ्टर अगर आप एक एमएलए की वोट वैल्यू जानना चाहते हैं तो जितना 1000 से भाग देने के बाद डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें नंबर ऑफ एमएलए से भाग दे दीजिए तो सिंगल का निकल आएगा, ठीक है। अब इक्वलाइज कैसे किया जाएगा 55 की क्लास 2 में लिखा हुआ है। क्लास 2 में 2 बातें लिखी हैं। क्या? पहले तो जनसंख्या में 1000 से भाग देना, और फिर अगर भाग देने पे 500 या उससे अधिक बचेगा तो उसे 1 मान लेना, यानी हाफ या हाफ प्लस है तो उसे 1 मान लिया जाएगा। ये तो नॉर्मल रूल ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है, गणित का सामान्य नियम, ठीक है। बट सी में, क्लास 2 के सब क्लास सी में क्या लिखा हुआ है, इक्वलाइजेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। ये कहां लिखा हुआ है, 1 एंड 2 के ए और बी में, और ये क्लास 2 के सी में लिखा हुआ है। ओके, क्लास 3 में क्या लिखा है, द अदर माइनर, उसमें क्या लिखा है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी सीक्रेट बैलेट। यहां पे क्या होगा, एक तो सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान होगा, सीक्रेट बैलेट। इसका मतलब है सीक्रेट बैलेट मतदान गुप्त होगा, यानी कि यहां व्हिप सिस्टम लागू नहीं होगा। व्हिप दल बदल की व्यवस्था लागू नहीं होगी। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ एंटी डिफेंशन, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर कोई यहां पे वोटिंग करने पर दायी नहीं हो जाएगा, यानी यहां पार्टी व्हिप को फॉलो करना जरूरी नहीं, बिकॉज देयर इज सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट वोटिंग, ठीक है। तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये तो आपने देख लिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि यूपी का के एमएलए की वोट वैल्यू 500 प्लस होती है, एमपीज की वोट वैल्यू एक्चुअली जो मैं एक मोटे मोटे रेशियोस बता रहा हूं 700 प्लस होती है, जबकि उत्तराखंड के एमएलए की वोट वैल्यू 200 के आसपास होती है। तो ये प्रोपोर्शनल वोट वैल्यू है, ये तो आपने पहले देख लिया, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये आपने समझ लिया, गुप्त होगा ये भी समझ लिया। अब 2 बातें बच रही हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल। तो सिंगल और ट्रांसफरेबल को समझिए। अब मैं इसको डेल कर दे रहा हूं ताकि आपको यहां पे सिंगल और ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है बता सकूं। सिंगल ट्रांसफरेबल, देखिए आप एक बात जान लीजिए, कुछ ऐसे इलेक्शंस होते हैं जिनमें नंबरिंग से वोट दी जाती है। सपोज करिए ये कैंडिडेट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो इनका नाम लिखा रहता है बैलेट पे, इनका नाम बैलेट पे लिखा होता है, और जो वोटर जाएगा वोट देने, अब हम एक ही बैलेट को मान लेते हैं कि कई लोगों को जाएगा, तो मान लीजिए कि एक नामक आदमी गया वोट देने, एक मेंबर, तो अब इसको क्या करना है, सिंगल बट ट्रांसफरेबल वोट देना है। जनरली लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन है रूल यही, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के तमाम एमएलएज और एमपीज भी नहीं जानते हैं दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, नहीं जानते लोग। खैर वो क्या जानते हैं, लूटने के सिवा बहुत सारे लोग और कुछ नहीं जानते। जो अपने यहाँ हाउस में थोड़े पढ़े लिखे हैं वो सातिर हो, पढ़े लिखे नहीं, कुछ एक को छोड़ दिया जब से सब सातिर है, ठीक है।
वो तो उसको गुमराह करते हैं, अदरवाइज उनको खुद नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सपोज करिए क नाम का एक आदमी वोट देने गया, एक मेंबर, तो क्या करेगा, सिंगल बट ट्रांसफरेबल वोट देगा, तो उसका वोट तो एक ही बार काउंट होगा, लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी वो देगा। कैसे देगा? ही हैज टू डिस्क्राइब हिज प्रियॉरिटी, तो प्रियॉरिटी में वोट देगा। उसको लग रहा है कि उसी नामक आदमी का प्रेसिडेंट बनना ठीक होगा, तो इसके सामने एक लिखेगा, एक। अब उस चाहता है कि अगर सी नहीं चुनाव जीते तो ए बन जाए 2, देन आफ्टर डी बन जाए, एट लास्ट 2। ओके, तो इसने सिंगल वोट दिया, यानी वोट इसका सी के फेवर में गिना जाएगा। जब सी के फेवर में नहीं गिना जाएगा तभी केवल ए के फेवर में गिना जाएगा, जब ए के फेवर में नहीं गिना जाएगा तभी डी के फेवर में गिना जाएगा। यानी एक ही टाइम पे चारों फेवर में नहीं गिना जाएगा। प्रियॉरिटी उसने जिसको दी पहले उसके फेवर में, अगर उसको आउट किया जाएगा तब दूसरे प्रियॉरिटी वाले फेवर में, अगर उसे आउट किया जाएगा तब तीसरी प्रियॉरिटी वाले फेवर में, और चौथी प्रियॉरिटी, चूंकि 4 ही कैंडिडेट हैं तो चौथी के लिए गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर 5-6 होते तो चौथी भी गिनी जा सकती है। अब उसका पर्पस क्या बात है? ख नामक वोटर वोट देने गया, इसने कर दिया 1 2 3 4, इसकी प्रियॉरिटी इस तरह से थी। ग नामक वोटर देने गया 3 1 2 4, घ नामक वोटर वोट देने गया 2 1 3 4, अंग नामक वोटर वोट देने गया 1 3 4 2, ठीक है। च नामक वोटर वोट देने गया 2 4 1 3। तो ऐसे करके डिफरेंट वोटर्स जो हैं अलग अलग वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी वोटर्स हैं सब अलग अलग वोटिंग कर रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। अब होता क्या है कि शुरू में जो फर्स्ट वोटिंग जो काउंट होती है उसमें किसी के भी, जैसे सी के खाते में कितने वोट रखे जाएंगे? 1 2। अब आप 2 लिखेंगे तो शायद आप फेल हो जाए, क्योंकि 2 पे तो वोटिंग होगी नहीं। यहां तो 489 तो केवल एमएलएस हैं, और 776 जो है, सॉरी 489 में 30 आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि उसमें सब सारे इलेक्टेड आप नॉमिनेटेड लोग हैं, और 776 वो भी हैं, तो कितने वोट होते होंगे? तो अब सपोज करिए आप कि सी ने कितना वोट पाया? 2, ए कितना पाया? 2, बी कितना पाया? 2, डी कितना पाया? 1 भी नहीं पा रहा है। लेकिन अब आप ऐसे निकालेंगे इतने छोटे पैमाने पर तो नहीं निकलेगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। पहला किस पे गिना जाएगा? पहली प्रियॉरिटी जिसको दी गई उसको, यानी ए के फेवर में क का वोट नहीं काउंट होगा, ग का वोट नहीं काउंट होगा, घ का वोट नहीं काउंट होगा। सपोज करते हैं कि 100 वोट्स, कुल 100 लोगों ने वोट दिया है, इसमें से 21st प्रियॉरिटी का वोट इसको मिला है, 1 नंबर का, 25 1 नंबर का वोट बी को मिला, 35 1 नंबर वोट सी को मिला। कितना हो गया? 35 45 80। लेकिन इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, 18 वोट जो है फर्स्ट प्रियॉरिटी का डी को मिला। अब सही है, 18 एंड 22 एंड 18 40 40 एंड 35 25 60, 100 वोट हो गए। अब क्या है कि कौन इलेक्शन जीता? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये नहीं है कि जो सबसे ज्यादा पाएगा वो एक वोट जीत जाएगा। ये जनरल इलेक्शन में होता है, ये जनरल इलेक्शन में होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये जनरल या इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी होगा। जैसे आप विधानसभा जब चुनती है राज्यसभा के सदस्यों को, तो भी वहां पे यही मान लेता है जो ज्यादा पाएगा वो जीत जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टू विन द इलेक्शन द पर्सन मस्ट हैव वोट 50% प्लस वोट। 50% प्लस का मतलब है 51 वोट पाना जरूरी है टू विन, ठीक है, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। 51 वोट पाना जरूरी है। अब क्या हुआ, तो जो मैक्सिमम पाया वो 35 पाया। ऐसे में क्या होता है कि जो सबसे कम पाया उसे
आउट कर दिया जाता है। यानी अगर पहली ही काउंटिंग में किसी को 50% प्लस वोट नहीं मिला तो जो सबसे कम नंबर वोट पाया है उसे बाहर किया जाएगा। जब इसे बाहर किया गया, सपोज करिए यहां पे 1 नंबर पाया था और यहां पे 2 नंबर ये पाए थे, ऐसे था। अब इसका ये जो वोटिंग है इसमें ही 1 नंबर 18 वोट पाया था 1 नंबर के, तो इसके 18 बैलेट जो है खत्म हो जाएंगे। अब इस 18 में क्या काउंट होगा? इन ऑल द 18 बैलेट्स, ठीक है, द फर्स्ट प्रायोरिटी हैव बीन गिवन टू डी, सो व्हाई दीज बैलेट्स हैव काउंटेड इन फेवर ऑफ डी, बट अब तो डी को बाहर कर दिया, डी हैव बीन ड्रैग्ड आउट। तो अब 18 बैलेट्स में देखा जाएगा टू whom the second priority has been given by the voter, कि इन 18 बैलेट्स में सेकेंड प्रायोरिटी पे किसको रखा गया। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि उन 18 में किसको दिया गया है, यहां पे हम इसको काउंट कर दे रहे हैं एक अप्रोक्सीमेटली। 18 में से 5 सेकेंड प्रायोरिटी का इसको दिया गया है, ओके, 4 सेकेंड प्रायोरिटी का इसको दिया गया है। ये किसका वोट है? डी का। फर्स्ट प्रायोरिटी डी को दी गई थी, अब सेकेंड प्रायोरिटी काउंट हो रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी में डी को दिया गया, बट डी तो लूज कर गया, तो हटा दिया गया, तो सेकेंड प्रायोरिटी उसको दी गई, ओके। 9 6 वोट सी को दिया गया सेकेंड प्रायोरिटी का, एंड 3 वोट, सॉरी गलत हो गया, ऐसे 3 नोट्स हो गए ना, 8 5 13 6, सॉरी 7 5 12 6 18, तो टोटल जो डी के 18 नोट्स थे इसमें सेकेंड प्रायोरिटी पे इस तरह से मिला था। अब जरा सेकेंड प्रायोरिटी को जोड़ने के बाद हम देखें तो ए का वोट कितना होगा? 22 + 5 बराबर हो गया 27, ए ने पाया, ओके। 25 + 7 32 वोट किसने पाया? बी ने। 35 + 7 +6 41 वोट पाया सी। अभी भी 51 वोट कोई नहीं पाया, तो 51 तक पहुंचने के लिए क्या होगा? अब जो इनमें सबसे कम पाया उसे हरा दिया जाएगा, तो अब ए को आउट कर दिया जाएगा। जब ए को आउट करेंगे तो अब जरा देखिए क्या हो रहा है। जब ए को आप आउट करेंगे तो 22 बैलेट्स में ए ने फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट ऑब्टेन किया है। इन 22 बैलेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी हैव बीन गिवन टू ए, तो इसमें सेकेंड प्रायोरिटी देखी जाएगी किसको दी गई। कभी वो सेकेंड प्रायोरिटी डी को दी गई होगी तो डी तो बाहर हो चुका है, तो वहां पे जिनमें डी को दी गई उसमें थर्ड प्रायोरिटी किसको दी गई? ऑब्वियसली थर्ड प्रायोरिटी या तो सी को होगी या बी को होगी। और ये जो 5 है, इन 5 में सेकेंड प्रायोरिटी यू को थी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो डी को थी, ये वाला है ना। तो इन 5 में थर्ड प्रायोरिटी किसको दी गई ये देखा जाएगा। चलिए इन 27 में जब देखा गया कि बी और सी में किसको पहले दिया गया, तो पाया गया कि इसमें 17 वोट्स बी को मिले हुए हैं, ठीक है, और 10 वोट्स सी को मिले हैं। तो 10 वोट्स जैसे ही सी का हुआ कितना हो गया? 51। सी ओन द केस, ओन द इलेक्शन। भारत में ये सिंगल ट्रांसफरेबल, देखिए दे तो रहे सबको, बट ट्रांसफरेबल है, इसका उसको उसका उसको जा रहा है। काउंटिंग कभी भी एक समय पे एक ही के फेवर में होगी, जब उस प्रत्याशी को बाहर किया जाएगा तभी उसकी काउंटिंग दूसरे फेवर में होगी। सो सिंगल बट ट्रांसफरेबल। आपको मैं बता दूं, अनफॉर्चुनेटली आप कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय पे देखिए न्यूज, कोई शायद ही कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए प्रायोरिटी देते हैं। ये लोग बस एक नंबर लिख के चले आते हैं, इनको पता भी नहीं है कि दूसरा नंबर भी दिया जाना चाहिए। खैर, क्या कंपेल्ड है दूसरा नंबर देने के लिए? नहीं, कंपेल्ड नहीं है। आज तक इंडिया में कभी इस तरह से काउंटिंग हुई है जी? जस्ट वंस, एक बार हुई है,
इन 1969 इलेक्शन। ठीक है, ये जब बीबी गिरी साहब 1969 में चुनाव लड़े थे, बीबी गिरी, वेंकट वराह गिरी। ठीक है, इन 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, इस तरह से सेकेंड काउंटिंग करनी पड़ी। हम तो थर्ड काउंटिंग तक ले आए, बट सेकेंड टाइम काउंटिंग करनी पड़ी है। नहीं तो अभी तक भारत में कभी सेकेंड टाइम काउंटिंग जरूरत नहीं पड़ी है। भारत में एक बार प्रेसिडेंट जो है निर्विरोध चुनाव जीते हैं, दैट इज नीलम संजीवा रेड्डी, हु वाज डिफीटेड बाय डॉक्टर बीबी गिरी इन दिस इलेक्शन, बट later on he was इलेक्टेड कॉन्सियसली। ठीक है, वो निर्विरोध चुनाव जीत गए थे 1977 में, फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद। ठीक है, यहां बीबी गिरी का चुनाव हुआ था, वेंकट वराह गिरी, बीबी गिरी, जिनके टाइम ये चुना गया था, सॉरी ये काउंटिंग करनी पड़ी थी, ट्रांसफरेबिलिटी को यूज करना पड़ा था। सेकेंड टाइम ये जीत पाए थे, डिफीटेड नीलम संजीवा रेड्डी। देन आफ्टर वेंकट वराह गिरी के बाद 1974 में हुए थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, हु डाइड ड्यूरिंग हिज रेन, अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, FA अहमद। देन तब 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी को इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था और ये निर्विरोध चुनाव जीत गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप भारत के इतिहास में दो बार पाते हैं, एक नीलम संजीवा रेड्डी का निर्विरोध चुनाव जीतना और एक बार सेकेंड काउंटिंग हुई है। मैं समझता हूं कि आप राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया प्रणाली को बिल्कुल समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। I will meet you tomorrow.